इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। आसा महला पहला वार सलोका नाल श्लोक भी मैले पहले के लिखे टुंडे असराजे की धुनी। श्लोक महला पहला बलहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। मल्ला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चानण होंदिया गुर बिन घोर अंधार। मल्ला पहला नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बुआड़ ज्यों सुने अंदर खेत। खेते अंदर छुटिया कौ नानक सोनाए फली गए फुली गए बपुड़े भी तन विच सुआओ पौड़ी। आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाम दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ। तू जानो ही सब से दिल ऐसे जिंद को आओ कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ। जगत गुरु बाबा गुरु नानक देव जी महाराज की अदुੱਤੀ रचनावां दे चों एक महान अमर कलाम आप जी की पावन बाणी जिसका नाम आसा दीवार है। सियाणियां दा ऐसा कहना है कि आसा राग दे जन्मदाता भी गुरु नानक देव जी महाराज ने, क्योंकि संगीत के ग्रंथां दे आसा ते माज राग मिलता नहीं। लिहाजा सियाणियां दा ऐसा कहना ये दो राग गुरु नानक देव जी महाराज की देन ने। इस राग दे सतगुरु देव जी महाराज ने जिहड़ी अपनी अगम्मी रचना उचारण की है उसका नाम है आसा दीवार। वार ओ कलाम ओ बाणी जो जंगी तर्ज नाल उचारण की जाती है और ये कुछ सुभाविक ही ऐसा हो गया है कि वार शब्द के अर्थ इत्थे भी जंगी ने। जंगी तरस दे नाल उचारण की हुई बाणी। हिंदुस्तान जिथे संतां महापुरुषां दा देश है उथे सूरबीर महाबली ते जोधियां दा देश भी ये रहा है। इस दे च गाहे बगाहे जो जोधे पैदा होंदे रहे, सूरमे पैदा होंदे रहे, ढाडी लोग जो वास्तविक किसी हद तक छंदाबंदी स्वयं करके ते सूरमे दी किसी महापुरुष की उपमा करनी, इस तरह के पुरुषों नूं कहा जाता सी ढाडी। ये धुन भी खुद बनाते सन, ये तर्ज खुद अपने अंदरों पैदा करते सन। लिहाजा आसा दीवार दे उत्ते जिहड़ी धुन चढ़ी हुई है उस धुन का नाम है टुंडे असराजे की धुनी। एक असराज नाम का राजा होया जो वास्तविक टुंडा सी, एक हाथ सी उसका, लेकिन एक हाथ दे होंदे होया भी उहदी सूरबीरता दा सिक्का चारों पासे जमे होया सी। उहदी सियाणप बड़ी दूर दराज तक फैली हुई सी और उसने अपनी सियाणप ते अपने बाहुबल दे नाल बहुत कुछ प्राप्त किया होया सी और चारों पासे उसका दबदबा सी। सियाणे
ਢਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੀਤ ਗਾਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਚ ਗਾਏ, ਜਿਸ ਧੁਨ ਦੇ ਚ ਗਾਏ, ਉਸ ਧੁਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ 9 ਧੁਨਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਧੁਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੰਦਰਹਾੜਾ ਸੋਈਆਂ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣੀ, ਲੱਲਾ ਬਹਿਲੀਮਾ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣੀ। ਇਹ ਇਤਿਆਦਕ ਇਹ ਧੁਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰਜ਼, ਐਸੀ ਤਰਜ਼ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੀਤ ਤੇ ਤਰਜ਼ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਧੁਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਤਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਤਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਅਥਾਹ ਨਾ ਮੁਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਗਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਸੰਗੀਤ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਤੁਖਾਰੀ 12 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਹੈ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ, ਫਿਲਸਫਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਔਰ ਭਾਵ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ, ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਨਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਪਨਾ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸੁਤੇ ਸਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹ ਦਇਆ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲ, ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ। ਇਹ ਵਾਰ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਪੌੜੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਐਸੇ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਕ। ਉਹ ਸਲੋਕ ਜੋ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕੇ, ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੋ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਲੋਕ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੁੱਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਣਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਫਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖੋ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਛੀਨਾ ਝਪਟੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਵੈਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖੋਵੇ, ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੇਵੇ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੀਨਾ ਝਪਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਦੇਣਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੱਤੀ ਦੌਲਤ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ, ਰਾਈ ਜਿਤਨਾ ਵੀ, ਤਿਨਕੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਭਾਵ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਨ ਮਾਨੁਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘੜਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬੜਾ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨੋਹਰ ਬੋਲ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਦੇ ਨਿਹਾਲ। ਆਮ ਜਗਤ ਤੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਉਬਲ ਉਬਲ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਅਤੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਨ ਰਾਹੀਂ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਆਚਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਨਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ, ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਹੀ ਮਹਾਨ ਦੀਪਕ ਨੇ ਜੋ ਚਾਨਣਾ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ। ਭੌਤਿਕ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਫਿਲਸਫਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਨੂਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਤਨ ਨਹੀਂ,
गुरु एक महान रोशनी है, महान विचार है, महान नूर है। सूरज का चानना बाहर पदार्थ का ज्ञान दे दिंदा है, उसकी असलीयत साडे सामने रख दिंदा है। अंधकार दे विच कुछ भी नहीं पता चलता किहड़ी चीज कित्थे पई है और किहड़ी चीज की है। इस सब कुछ का बोध सूरज की रोशनी दे विच पता चलता है। पर मैं कौन हाँ, मैं की हाँ, ये ते गुरु ज्योति, गुरु दे चानने तो ही पता चलता है, गुरु की रोशनी तो ही पता चलता है। पृथ्वी ते सूरज का चानना हर वक्त नहीं होता, पृथ्वी ते रात आ जाती है। पर इतनी गल स्पष्ट है, सूरज दे हर वक्त चानना है, पर जब पृथ्वी सूरज तो कंड कर लेंदी है तो पृथ्वी के उस हिस्से विच अंधकार छा जाता है। गुरु ते एक जोत है, नूर है, और उस दे हर वक्त ये नूर है, वो नूर हर वक्त वंड रहा है। पर जद मनुख बेमुख हो जाता है, जद मनुख पिठ कर लेंदा है, तो उस नूर तो वांझा रह जाता है, उस चानने तो वांझा रह जाता है। अखां बंद कर दईए, सूरज की रोशनी नालों संबंध टूट जाता है, ते मन मुख बन जाइए, मन के अधीन होके चलीए, तो फिर गुरु की रोशनी नालों, गुरु के चानने नालों ही संबंध टूट जाता है। ये दो तरह की रोशनी है। एक रोशनी वो जो साडी अखां नूं मिलती है ते पदार्थ का उस तो बोध मिलता है। एक रोशनी वो जो साडे मन नूं मिलती है ते उहदे नाल परमात्मा का बोध मिलता है, ईश्वर का बोध मिलता है। इस वास्ते साहिब कहते ने, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, चाहे एक चंद्रमा नहीं सैकड़े चंद्रमा आकाश दे उत्ते उतर आन, और सूरज एक नहीं हजारां सूरज आके अपनी रोशनी वंडन, पर इते चानण होंदियां गुरु बिन घोर अंधार। चाहे इतना ही चानना क्यों ना होवे, इतना ही प्रकाश क्यों ना होवे, गुरु ज्योति तो बिना अंधकार बनिया रहिंदा है। अपने आप का पता ही नहीं चलता, मैं की हाँ, मैं कौन हाँ। बंदे नूं इस गल का बोध ना होवे ते मनुख की दुनिया च कितना वड्डा अंधकार है। कई दफा देखीदा है, बंदे नूं पहाड़ां दा पता है, सागर दा पता है, दरियावां दा पता है, मुल्कां दा पता है, कौमां दा पता है, पशु पंखियां दा भी मनुख दे कोल बोध है, ग्रह नक्षत्रां दा भी मनुख दे कोल बोध है। पर कितनी गजब दी गल है कि मनुख दे कोल अपने आप दा कोई बोध नहीं, अपने आप दा कोई ज्ञान नहीं। ये कौन है? किसे विज्ञानक कोल पुछांगे ते उसका जिहड़ा जवाब होवेगा वो अधूरा होवेगा, इंज कह लईए वो गलत होवेगा। पर जे किसे भगत कोलों पुछिए, संत कोल पुछिए, तो ओदा ते कहना यही होवेगा, कहो कबीर एह राम के अंश, जस कागद पर मिटे न मनस। मैं ते राम दी अंश हां, मैनू पता चल गया है मैं उस सूरज दी किरण हां, मैनू पता चल गया है मैं उस सागर दी लहर हां। पर यह पता चलता है गुरु चानने विच, इसका बोध मिलता है गुरु ज्योति नाल। इस वास्ते साहिब कहते ने कि एक चंद्रमा नहीं सैकड़े चंद्रमा, एक सूरज नहीं हजारां सूरज जे आसमान दे उत्ते आके अपनी रोशनी वंडन, तां भी अपने आप का बोध नहीं मिलता, पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हाँ, मैं की हाँ। ये गुरु ज्योति नाल ही पता चलता है। इस वास्ते गुरु एक ऐसा महान नूर है जिस तो हजारां सूरज कुर्बान किए जा सकते। गुरु एक ऐसा महान चानना है जिहदे सामने हजारां चंद्रमा तुच्छ ने। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदियां गुरु बिन घोर अंधार। मल्ला पहला, नानक गुरु न चेतने मन अपने सुचेत। मनुख दा हट, मनुख दा अहंकार ऐसा सोचण ते उसनू मजबूर कर देंदा है कि मैं सुचेत हाँ, सावधान हाँ, मैं सब कुछ जानदा, मैनू सब कुछ पता है। ते गुरु दा चिंतन नहीं करता, गुरु नू याद नहीं करता, गुरु नाल जुड़दा नहीं। इस वास्ते नहीं जुड़दा, मन अपने सुचेत, अपने मन विच मनी बैठा है मैं ते सुचेत हाँ, मैं ते सावधान हाँ, मैं ते सब कुछ जानदा, मैनू सब कुछ दा पता है। महाराज कहंदे ने
इस तरह की सोच विचार वाला मनुख जिहड़ी जिंदगी बतीत करता है वो इस तरह है कि छुट्टे दिल बुआड़ ज्यों सुन्ने अंदर खेत। किसे सुन्ने खेत दे च दिल बुआड़ तिल, वो तिल जिसकी डोडी दे अंदर राख होंदी है, फल नहीं होता। और उगया भी होवे किसे ऐसे खेत दे च जो सुन्ना है, जिसकी कोई मलकीयत नहीं, जिसका कोई मालिक नहीं। महाराज कहते ने ये दिल सुन्ना है, हर वक्त सुन्नापन इसनूं महसूस होगा। गुरु दे चानने तो बिना, गुरु की रोशनी तो बिना, चाहे ये परिवार विच बैठेगा, बाजार विच बैठेगा, संसार विच बैठेगा, इनू सुन्नापन महसूस होगा। और सुन्नापन इसनूं बेचैन करेगा, दुखी करेगा। अक्सर देखिया है मनुख साथ लभदा है, मित्र दा साथ, पुत्र दा साथ, बाजार दा साथ, संसार दा साथ, आखिर कुछ ना कुछ चाहिए है। लेकिन सब कुछ दे नाल बैठ के रह के भी मन का सुन्नापन दूर नहीं होंदा। ये ते उदों ही दूर होवेगा जद ये निरंकार दे नाल बैठेगा, जद ये करतार दे नाल बैठेगा। ते करतार दे नाल बैठना की है? करतार दी याद दे विच बैठना, उहदे सिमरन दे विच बैठना। तो साहिब कहंदे नानक गुरु न चेतै, गुरु दा ते चिंतन करदा ही नहीं, गुरु दा ते सिमरन करदा नहीं। और न करन दा कारण की? मन अपने सुचेत। जैसे जैसे मनुख दी ये सोचनी वधदी है कि मैं सब कुछ जानदा, वैसे वैसे सब कुछ जानन तो ये रह जाता है। हकीकत है जैसे जैसे इसका अहंकार वधदा है कि मैनू बहुत कुछ पता है, दरअसल बहुत कुछ तो इसका संबंध टूट जाता है। जैसे जैसे इहदे संसारी अकल ते संसारी पढ़ाई इसनूं मजबूर कर दी है कि मेरे को बहुता ज्ञान है, मेरे को बहुता ज्ञान है। दरअसल बहुते ज्ञान की होंद ते बहुते ज्ञान का मान बहुते अज्ञान नूं इकट्ठा कर देंदा है, बहुती नासमझी नूं इकट्ठा कर देंदा है। तो साहिब कहंदे ने मन दे समझी बैठा है कि मैं सब कुछ जानदा, मैनूं सब कुछ पता है, ते गुरु दा चिंतन नहीं करदा। ऐसा मनुख इस ढंग नाल जिंदगी बतीत करदा है जिवें किसी सुन्ने खेत दे विच ਉਹ तिल जमे होवे जिहदे अंदर फल कोई नहीं, कालक ही कालक है, बुआड़ है। खेते अंदर छुटिया कहो नानक सो ना। इस तरह ये तिल खेत दे छुट्टड़ है, कोई मालक नहीं है। कहो नानक सो ना, ਉਹਦਾ सौ नहीं है कोई, उसका कोई मालिक नहीं है। फलिए फुलिए बपुड़े भीतन विच सुआ। साहिब कहते ने फलदा ते वो भी है, ऐसा नहीं कि वो तिल फलदा नहीं, फलदा है। उन्होंने फुल भी लगते हैं, पत्ते भी लगते हैं, हवा नाल लहरांदा भी है, अपनी होंद नूं प्रगट भी करता है। पर साहिब कहते ने भीतन विच सुआ। डोडी नूं तोड़ के देखिए, अंदर झाती मार के देखिए ते अंदर राख होंदी है, सुआ होंदी है। गुरु तो बेमुख होया मनुख भी फलीभूत ते होंदा है, धन करके भी फलीभूत होंदा है। और उसका फलीभूत होना चारों पासे दिखाई भी देंदा है, बे ते बहुत फलीभूत होया। ऐसा नहीं है कि भगत फलीभूत होंदे ने, नास्तिक भी फलीभूत होंदे ने। ऐसा नहीं कि दयालु फलीभूत होंदे ने, बल्कि जालिम भी फलीभूत होंदे ने। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि अध्यात्मक ज्ञानी ही फलीभूत होंदे ने, महा अज्ञानी भी फलीभूत होंदे ने। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ देवते ही फलीभूत होंदे ने, राक्षस भी फलीभूत होंदे ने, दैंत भी फलीभूत होंदे। लाजमी नहीं है कि शरीफ मनुख ही फलीभूत होंदे ने, बल्कि शैतान भी फलीभूत होंदे ने। पर शैतान दा फलीभूत होना, राक्षस दा फलीभूत होना, नास्तिक दा फलीभूत होना इंज है। साहिब कहंदे जैसे किसी छुट्टे तिल वह छुट्टे खेत दे विच, बिना मालिक दे खेत दे विच कोई बूटा उगया है तिल दा, मालिक कोई नहीं है, निखसम है। हकीकत है कि मालिक ना होवे ते चिंतावां बहुत सहेड़ लेंदियां। भाई हीर सिंह ने तदी ते कह दिता है, हे ईश्वर मैं तेरे पिंजरे विच रह के ही खुश हूं। क्यों? एक ते बिल्ली दा डर गया, दूजा रिज़क दी चिंता,
रोजी दी चिंता ये भी गई। हे ईश्वर, हे परमात्मा, कितना ही चंगा होवे कि मैं तेरे हथ दे पिंजरे विच कैद होवां, निश्चिंत हो जावां। दरअसल परमात्मा दी कैद भी एक महान सुतंत्रता है ते संसार दी महान सुतंत्रता भी एक महान कैद है। हकीकत ये गल वखरी है कि सुतंत्रता दी प्यास मनुख दे प्राणां विच है, पर जगत दे सुतंत्र रहिंदा होया भी मनुख कैद है। असी रोज मनुख तो सुनते हैं, की करा मैं मजबूर हाँ, की करा मैं मजबूर हाँ। ते मजबूर हाँ ऐसा कहना इस गल का सबूत है कि तू कैद है, तू गिरफ्त विच है, तू पकड़ विच है, तू सुतंत्र नहीं। और ये मजबूरी जिंदगी दी हर थां ते प्रगट होंदी है, किधरे समाज दे तल ते, किधरे अर्थ व्यवस्था दे तल ते, किधरे राजनीतिक तल ते बंदा कह देंदा है मैं मजबूर हाँ। किधरे रोग दे तल ते, किधरे सोग दे तल ते मनुख कह देंदा है मैं मजबूर हाँ, मेरा वस नहीं चलता। और यही गल एक कैदी कह देंदा है मैं मजबूर हाँ, पिंजरे च डके। मजबूरियां अलग अलग हो सकदियां ने, ये जेलां वख-वख हो सकदियां ने, लेकिन हैं सारे कैदी। मजबूरियां वख-वख हो सकदियां ने, पर मजबूर सारे ही ने। पर जिहड़ा एक दफा परमात्मा दी कैद विच चला जांदा है, परमात्मा दे पिंजरे दी कैद विच चला जांदा है, उहदी याद, उहदे सिमरन, उहदे भरोसे, उहदे सिदक ते उसदी होंद दी कैद विच जद अपने आप नूं कोई लीन कर लैंदा है ते महान सुतंत्रता दा फल उसदी झोली विच पैंदा है। इंज कह लो जो जप तप दे नियम विच, जो महापुरुषां दे बनाए होए नियम विच अपने आप नूं गिरफ्त कर लैंदा है, सच्ची सुतंत्रता दा आनंद ओही माणदा है, पूर्ण तौर ते मोक्ष दा आनंद ओही माणदा है। साहिब कहंदे ने फल दे फुल दे ते नास्तिक भी ने, दुष्ट लोग भी फलीभूत होंदे ने। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि शरीफ बंदे, सियाणे बंदे, दानी बंदे, गुणवान बंदे फलीभूत होंदे ने, नहीं, नास्तिक भी फलीभूत होंदे ने। ऐसा नहीं कि अंब दा दरख्त ही फलीभूत होंदा है, अक दे दरख्त भी फलीभूत होंदे ने। सिर्फ ऐसा नहीं कि अंगूरां दी शाखां नूं ही, बेलां नूं ही अंगूर लगदे ने, फल लगदे ने, बल्कि कंडियाली झाड़ियां नूं भी फल लगदे ने। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि अमरूद नूं ही फल लगदे ने, निम नूं भी फल लगदे ने। पर फर्क सिर्फ इतना है, एक नूं मिठे फल लगदे ने, एक नूं कौड़े फल लगदे ने। एक दे फल अमृत रस नाल भरे होए ने, एक दे फल जहर दे नाल भरे होए ने। लिहाजा भगत भी फलीभूत होंदे ने, नास्तिक भी फलीभूत होंदे ने। गुरु नूं भुला के, गुरु तो दूर रह के ਜਿਹੜੇ फलीभूत होंदे ने, साहिब कहंदे ने उन्हां दा फलीभूत होना इंज है, फलिए फुलिए बफुड़े ही तन विच सुआव। वो फलदे ने, फुलदे ने, लेकिन अंदर उन्हां दे सुआह हुंदी है, गिरी नहीं हुंदी, रस नहीं हुंदा, फल नहीं हुंदा। जिवें वो छुट्टड़ तिल, बुआड़ तिल, ओनू खोलिए ते अंदर तिल नहीं है, अंदर गिरी नहीं है, राख है, वो अंदरों जलिया होया है। इसे तरीके नाल सी फलीभूत होंदा ते देखदे आ कईयां नूं बड़े सुंदर वस्त्र पहने हुए ने, औलाद है, धन है, संपदा है, जस है, मान मर्यादा है, पर थोड़ा जिहा सीना चीर के वेखिए अंदरों जलिया होया है, अंदरों सड़िया होया है। और इतना जलिया है, इतना सड़िया है कि बेचैनी बाहर आके पैंदी पई है, सेक बाहर आके जो है निकलते पे ने, प्रगट हो रहे ने। तो प्रथम ये जिहड़े श्लोक आशा दीवार दियां इन्हां महान पौड़ियां नाल जो जुड़े हुए ने, इहदे विच गुरु दी महिमा, गुरु दी उपमा है। और गुरु नूं महान ज्योति आखिया है। गुरु महान सूरज है, गुरु महान चंद्रमा है, जिहदी रोशनी दे विच अपने आप दा पता चलदा है, अपनी होंद दा पता चलदा है, अपनी कालख दा पता चलदा है ते अपनी कालख नूं दूर करन दी समर्था प्रदान हुंदी है गुरु ज्योति करके, गुरु बख्शिश करके, गुरु रहमत करके। गुरु नानक दे घर नूं ही गुरु घर आखिया जांदा है। वख-वख जिहड़ियां जगत दे संप्रदावां प्रगट होईयां, उन्हां दे विच गुरु नानक ने जिस संप्रदा नूं जन्म दिता उस नूं ते आखिया ही जांदा है गुरु घर। ते गुरु घर दे जो आ गया वो शिष्य हो जांदा है, वो सिख हो जांदा है। ते जिहड़ा गुरु दी विचार नूं अपनी झोली च पा लैंदा है